Okay, so hello jam aspirants. I hope all of you are doing perfectly well. सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार के सारे लोगों को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आशा रखता हूँ कि ये दिवाली आप सबके लाइफ में बहुत ज्यादा रोशनी लेके आएगी और आप लोग जो भी सपने देख रहे हो और जो भी आपका लक्ष्य है जीवन में वो सारे आप उस सारे में आप कामयाब हो जाओ और जो भी आपका एग्जाम्स है जो भी आपके मन में इच्छा है वो सारी पूरी हो जाए। सो आज का जो क्लास है हम आज की क्लास में थोड़े बहुत रोटेशनल डायनामिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उनमें से पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। तो जो भी बच्चे ऑलरेडी क्लास में ज्वाइन हो गए हो वो बच्चे जरा मुझे एक बार बता दें कि इफ यू ऑल कैन हियर मी प्रॉपर्ली और नॉट। इफ यू कैन then we can initiate the class. Just give me a moment. Yes, I think now it's fine, right? Yeah. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ के शुरू करते हैं। भाई बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले तो पढ़ो क्या कहा गया है क्वेश्चन। देखो बेटा, बोला गया है ये कि हमारे पास एक सिलेंडर है। Now figure 10.E14 shows a rough track, a portion of which in the form of a cylinder of radius r. Okay. With what minimum linear speed should a sphere of radius small r be set rolling on the horizontal part so that it completely goes round the circle on the cylindrical part? मतलब कितना linear velocity से इसे छोड़ूं? What minimum velocity should I put onto this linear velocity should I put onto this little sphere so that it will go and it will complete that whole circle? So that is the question. Very important question, I guess. Very, very important question. So fine. See, I need to know a few things here. And the few things are like, suppose the sphere is actually rotating with a velocity v here. We're rotating with a velocity v and it's a circular path. So when it is rotating with a velocity v, then surely it must have that centripetal acceleration which is given by mv square by r. But tell me, what will be the radius of that circular path in which the center of mass of that sphere will rotate? See, this is the, suppose if the sphere is like this, the center of the sphere is here. So what is the distance between this center and this center? See, this total thing is capital R, so this thing will be capital R minus small r. So the sphere will rotate in a circle of radius capital R minus small r. So I can say that at the topmost point, we can write mv square divided by capital R minus small r is actually equal to, over here when the sphere is over here, so the centripetal acceleration acting along this direction, and there is only one force which is the mg in the downward direction. So that should be actually equals to m into g, and there is no normal reaction in the upward direction. And from this equation I can very well write down that v square equals to g into capital R minus small r. From this equation I can very well write down that v square equals to g into capital R minus small r. This equation is good. Now what happens if I tell that I have thrown this sphere with a velocity v dashed? If I have thrown this sphere with a velocity v dash, could you tell me what will be the energy conservation relation here? Okay, first of all मुझे एक चीज तुम्हें बताने दो कि डेफिनेटली स्फीयर रोल कर रहा है मतलब जमीन पे फ्रिक्शन होगा, जमीन पे फ्रिक्शन है, स्फीयर रोल कर रहा है मतलब जमीन पे फ्रिक्शन है। बट एक बात जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि जमीन पे फ्रिक्शन होने के बावजूद भी हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाने चाह रहे हैं।
जैसे कि हम सबको पता ही है कि जब फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जब मौजूद होता है, तब हम लोग मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन प्रिंसिपल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमेशा क्या होता है कि उस फोर्स की वजह से उस जो तुम्हारा कंजर्वेशन जो फोर्स है, जो तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स है, उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है, बहुत जगह पे तुम्हारा जो वर्क डन होता है उसमें कुछ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, गेट एक्सपेंडेड इन टर्म्स ऑफ द हीट एनर्जी। तो इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन यूजुअली हम लोग नहीं लगा सकते। बट इन दिस प्रॉब्लम हम लोग लगाने जा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद है उसके बावजूद भी। कोई बच्चा बता सकता है क्यों लगा सकते हैं? बताओ। The figure shows a rough track, a portion of which is in the form of a cylinder of radius r. With what minimum linear speed should a sphere of radius r be set into rolling? चलो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो बेसिकली क्यों लगा रहे हैं, वाई, क्यों हम लोग ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा रहे हैं, सर मुझे बताओ क्यों हम लोग लगा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल? सर यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो, and therefore there is no heat energy that is producing. Since work done by frictional force is zero, therefore we can apply conservation of mechanical energy. Since work done by frictional force is zero, so we can apply conservation of mechanical energy. Allow conservation of mechanical energy. So let the sphere is thrown with a velocity v dashed. Let the sphere is thrown with a velocity v dash. Let the sphere be thrown with a velocity v dash. V dash velocity हमने throw किया है, and therefore I can definitely tell that half m v dashed square plus half I into omega square. इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है इस लाइन पे, and therefore that thing should be equals to half mv square. यहाँ पे जब इस जगह पे पहुंचेगा तो half mv square plus half I into omega square प्लस इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जब यहाँ पे था, I can say that the potential energy is equals to mg, कितना हाइट ऊपर में था r, mg r। इस पॉइंट पे जब रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कितना पॉइंट ऊंचाई पे है ये, mg कैपिटल r माइनस स्मॉल r। That's what I can tell. mg capital R minus small r. Good. So अच्छी बात है। We want to, so this is actually equals to your 2r. Okay, fine. So यहाँ पे मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है, इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये इसका सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस ऊंचाई पे है, इसे r डिस्टेंस ऊंचाई पे है, तो प्लस mg small r, that is actually equals to यहाँ पे half mv square plus half I omega square, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस यहां से जब वो यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस ग्राउंड से कितना ऊपर है, ये पूरा डिस्टेंस है 2r माइनस एम जी, 2r माइनस r डिस्टेंस ऊंचाई पे है, एम जी एच। गुड। अब यहाँ पे जैसे ही मैं लगा रहा हूं, सो यू कैन सी omega dashed, it has to be omega dashed square
तो यहाँ पे जो तुम्हारा जस्ट बिकॉज प्योर रूलिंग इज हैपनिंग, तो v dash इज इक्वल्स टू कैपिटल, I know that there is a relation between v dash and omega. So अगर मैं कहूँ कि v dash इस जगह पे तुमने v dash प्लस छोड़ा, v dash is equals to तुम्हारा r into omega dash. So definitely तुम्हारा omega dash क्या होगा, v dash square by r square, omega dash का square. I क्या है तुम्हारा, I is equals to 2 by 5 m into r square, तो ये r square कट गया, तो 2 by 5 m v square plus half m v square, v dash square. तो 2 by 5 m v dash स्क्वायर प्लस हाफ m, तो 2 by 5 प्लस 1 by 2 कितना आ रहा है 10, 5 से 10 को करूंगा तो 2, तो 4 प्लस 2 से 10 को करूंगा तो 5, 9 by 10 I'm getting. Okay, yeah, 2 by 5 plus half. Okay, when I'm saying that half, okay, there is a half also. Half into 2 by 5 m r square into omega dash can be written as v dash by r, so v dash square by r square. Very good. And over here for this one, and for this one I can write it is just your half m into v dash square. So you tell me r square cancels out. This is 2 by 10. 2 by 10 m v dash square, half m v dash square. So here I'm having 10. So 5 plus 2, 7 by 10 m v dash square. I can just write it down, 7 by 10 m v dash square. 7 by 10 m v dash square is actually equal to, bring this one over here. So you're going to get minus mgr minus, so 2mg into capital R minus small r. This has to be capital R, 2 capital R. Capital R minus small r. And that thing should be added with this plus this will be actually equal to 7 by 10 mv square. That's all. I got this thing. अब मुझे क्या निकालना है, v dash निकालना है, राइट? यहाँ से तुम्हें v स्क्वायर का वैल्यू पता है, g into capital R minus small r. v स्क्वायर तुम्हारा क्या है, g into capital R minus small r, राइट? तो 7 by 10 से काट दो हर चीज, m भी काट दो, तो तुम्हारा v dash स्क्वायर आ जाएगा, अच्छा 10 by 7 मल्टीप्लाई कर दो तो 20 by 7, m तो चला गया, g into capital R minus small r है, प्लस 10 by 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, m कट गया तो सिर्फ इसको तो g into capital R minus small r है. तो ये क्या होगा भाई, g into capital R minus small r कॉमन ले लो, तो 27 by 7, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि v dash है तुम्हारा रूट ओवर ऑफ 27 by 7 g into capital R minus small r, g into capital R minus small r, root over of the answer. So this is basically the answer of this question. और ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा सवाल है. बेसिकली इस सवाल में तुम्हें क्या दिखाया जा रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं. तो जब एक बार तो जब हमारा स्फीयर यहाँ पे आ जाएगा, तब जमीन से इसका जो हाइट होगा, ये जो हाइट होगा जमीन से इसके सेंटर ऑफ मास का जो हाइट होगा, दैट विल बी योर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. यहां से ये जो हाइट है सेंटर ऑफ मास की, ये सिर्फ तुम्हारा स्मॉल आर है, और ये जो हाइट है ये है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. सॉरी, दिस हाइट इज एक्चुअली 2 कैपिटल आर माइनस स्मॉल. तो डेफिनेटली एम जी एच, यहाँ पे एम जी आर तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई इनटू ओमेगा डैश. यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है ये वी डैश वेलोसिटी है. इस अगर ये यहाँ पे पहुंच गया तो ये बाकी यहाँ पे घूम के इधर गिर भी जाएगा. देयर इज नो इशू ऑन दैट. So this is basically the question. ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सवाल था. This is radius r. This is radius 2 minus r.
2r minus 2r minus दिस डिस्टेंस इज 2r minus, ठीक है। चलो ये वाला अगर हो गया हो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। सारे के सारे बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, कहीं पे तकलीफ है तो मुझे बताओ, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन तुमने करा इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है। एक सेकेंड। Okay, I have got the question. Just give me some time so I will crop it. आ गया क्वेश्चन तुम्हारे सामने, बस मुझे फिगर को अटैच कराना है। फाइन, चलो सारे के सारे बच्चे एक बार देखो और देख के बताओ क्या बोला गया है सवाल में। सवाल में कहा गया है कि फिगर 10.E15, मतलब ऑफ कोर्स हम लोग समझ गए कौन सी फिगर की बात करा जा रही है यहाँ पे। वी हैव गॉट इट कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हिच फिगर, इट इज दिस वन, शोज अ स्फेरिकल बॉल, ठीक है। एक स्फेरिकल बॉल के बारे में बताया गया है यहाँ पे, एक स्फेरिकल बॉल के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो शोज अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m रोलिंग डाउन अ लूप ट्रैक, रोलिंग डाउन अ लूप ट्रैक। The ball is released on the inner portion of a vertical height h from the lowest point. Okay. The circular part shown in the figure has a radius of capital R. Find the kinetic energy of the ball when it is at a point A where the radius makes an angle theta with the horizontal. Find the radial and tangential accelerations of the center when the ball is at A, and then find the normal force and the frictional force acting on the ball if h equals to 60 centimeter and r equals to 10 centimeter, theta equal to 0 and mass m equal to 70 gram. कैसे सॉल्व करोगे बताओ। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो भाई। जब इस पॉइंट पे है, जब रूल करना शुरू ही किया था तब उसके सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थे, जब यहाँ पे आके पहुंचा है तो पोटेंशियल काइनेटिक दोनों ही है। गुड, पोटेंशियल काइनेटिक दोनों ही है ना। ठीक है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताएं सारे बच्चे, ये हाइट अगर मान लो यहाँ पे जब था वो उसका हाइट एम जी एच, मतलब ग्राउंड से एच हाइट ऊपर में था, तो यहाँ से ये हाइट कितना ऊंचाई पे है? ये तो मुझे पता है रेडियस आर है, ये हाइट कितना होगा? अगर ये आर है तो ये होगा आर कॉस थीटा, ये होगा आर साइन थीटा, तो ये तुम्हारा है आर साइन थीटा, ये है आर, तो आर प्लस आर साइन थीटा होगा।
अच्छी बात है, आर प्लस आर साइन थीटा होगा। दिस इज आर साइन थीटा, दिस इज रेडियस आर, तो आर प्लस आर साइन थीटा। चलो ठीक है, तो frictional force not doing any work, therefore applying conservation of mechanical energy, conservation of mechanical energy we get। जब ये बॉल यहां पे था, उस पॉइंट पे था पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ mgh, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था। जब यहां पे आके पहुंचा है बॉल, तो उसका काइनेटिक एनर्जी है हाफ m इंटू वी स्क्वायर, हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहां से यह हाइट जो है दैट इज एम जी इंटू आर प्लस आर साइन थीटा, तो आर इंटू 1 प्लस साइन थीटा। डन। एम जी ये पूरा पार्ट तुम्हारा एच पे जाता है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 7/10 वी स्क्वायर। अच्छा, इन लोगों ने क्या कहा है अब, find the kinetic energy of the ball when it is at the point A where its radius makes an angle theta with the horizontal। हाँ ठीक है, ठीक है, तो mgh माइनस दिस थिंग होगा ना, तो therefore this is the kinetic energy of the ball, so this whole thing, kinetic energy at point A is actually equals to half mv square plus half I ओमेगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, एम जी एच माइनस एम जी, तो एम जी को कॉमन ले लो, एच माइनस आर साइन थीटा। ये हो जाएगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। कोई तकलीफ, कोई दिक्कतें? सर इतना सीधा क्वेश्चन है और इसमें क्या दिक्कत हो सकता है, यही तो पार्ट है काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ए। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, एम जी एच माइनस एम जी आर इंटू 1 प्लस साइन थीटा। गुड। इसके बाद क्या पूछा है सवाल में, फाइंड द रेडियल एंड टैंजेंशियल एक्सेलरेशंस ऑफ द सेंटर व्हेन द बॉल इज एट ए। फाइंड द रेडियल एंड टैंजेंशियल एक्सेलरेशंस ऑफ द सेंटर व्हेन द बॉल इज एट ए। अच्छा, रेडियल एक्सेलरेशंस पूछा गया है, टैंजेंशियल एक्सेलरेशंस पूछा गया था कि भाई रेडियल एक्सेलरेशन तो इस तरफ हो, अगर बॉल यहाँ पे है तो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरफ होना चाहिए, रेडियल एक्सेलरेशन इस तरफ होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। सो हम लोग कैसे निकालेंगे ये चीज, कैसे निकालेंगे? अच्छा, रेडियल एक्सेलरेशन मींस बेसिकली द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r, तो v स्क्वायर बाय r निकाल लोगे तो काम बन जाएगा। यहाँ पे ये जो बॉल है इट्स अ पार्टिकल लाइक बॉल, इसका कोई रेडियस मेंशन नहीं किया गया है। अगर रेडियस इसका मेंशन करा होता तो हम लोग बताते, बट इस बॉल इज जस्ट बेसिकली इट्स अ पार्टिकल लाइक थिंग, इट्स अ पार्टिकल लाइक थिंग। They did not mention the radius of the ball here. तो उस हिसाब से देखा जाए तो v स्क्वायर इंटू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 10/7। ओके फाइन, ठीक है, ये रेडियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। टैंजेंशियल एक्सेलरेशन को लेके सोचो, देखो इस इक्वेशन से बताओ, इस इक्वेशन से बताओ, इस इक्वेशन को थोड़ा और कैसे लिख सकते हो, पार्ट बी पे आ जाओ। ये गया तुम्हारा पार्ट ए, पार्ट ए या क्या है, पार्ट ए, हाँ ठीक है, ये तुम्हारा गया पार्ट ए। पार्ट बी पे आ जाओ, बी पे तुम्हारा क्या है देखो,
एम जी इज इक्वल टू 7/10 एम वी स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ, एम जी एच, इस पूरी चीज को लिख सकता हूँ 7/10 एम वी स्क्वायर प्लस एम जी कैपिटल आर इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अच्छी बात है, जहां से मैं इसको इधर लेके आ जाऊं और आर से डिवाइड कर दो पूरी जगह पे, और एम काट दो, तो यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इधर लेके आ गया हूँ, एम काट दिया हूँ और 10/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 GH/7 डिवाइडेड बाई आर, तो 10/7, यहाँ पे जी इस पे भी है, इस पे भी है, तो जी को भी कॉमन ले लिया है। सर यहां से आर करूंगा तो चला जाएगा, तो एक काम कीजिए, H/R यहाँ पे रहेगा, माइनस, यहां से m चला गया, r चला गया, g को बाहर कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, दैट्स ऑल। ये तो H/R -1 माइनस साइन थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -1 माइनस साइन थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज माई रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज माई रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रिक। जो बच्चे देख नहीं पा रहे थे उनके लिए मैं मेरा वीडियो थोड़ा ऑफ कर देता हूँ, देख लो। दैट इज, आज एक्चुअली ना रेडियल एक्सेलरेशन होना चाहिए, रेडियल एक्सेलरेशन एक्चुअली होना चाहिए दैट इज सेंट्रिपिटल। इस केस में रेडियल एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन शुड बी योर v square divided by capital R minus small r, which is approximately equals to v square divided by capital R, क्योंकि small r is very small. So that's your radial acceleration. चलो और नहीं लिखते हैं, that's my radial acceleration. What can you do about the tangential acceleration? Brother, what can you do about the tangential acceleration? Tangential acceleration के बारे में क्या करा जाए बताओ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में क्या करा जाए? सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखो, नेक्स्ट पेज में आओ, तुम्हें पता है v स्क्वायर क्या है, इसको क्या लिखो, r को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 10g/7 HR माइनस h माइनस r माइनस r sin थीटा, 10g/7 h माइनस r sin थीटा, ये चीज होना चाहिए, सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये तुम्हारा v स्क्वायर है, तो यहां से मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या मिलेगा, 2v इंटू dv dt शुड बी इक्वल्स टू, इसको भी अगर टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा 10g/7। अंदर वाले क्वेश्चन में h डिफरेंशिएट होकर 0, r डिफरेंशिएट होकर 0, ये कांस्टेंट है, नेगेटिव साइन आगे आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो r रहेगा, यहाँ पे sin थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा d थीटा dt, d थीटा dt तुम्हारा ओमेगा आता है, ठीक है भाई, d थीटा dt की तरह क्या आता है बता, ओमेगा आता है, और यहाँ पे v को लिख सकते हैं ओमेगा r, तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल कर दे, तो नेक्स्ट जगह पे लिखो 2 इंटू ओमेगा इंटू r, the angular velocity over here is basically omega into r, dv dt is minus 10g/7 r cos theta into omega, both sides omega omega काट दो, r और r काट दो, 2 को लेके इधर आ जाओ, तो -5g/7
cos theta. That implies dv dt acceleration, that is actually equals to your dv dt acceleration tangential. That's your dv dt is actually equal to your minus 10g by 7 into cos theta. Good. ओ सॉरी 2 से कट के ये 5 आ गया था, माइनस 5g by 7 into cos theta. That's your tangential acceleration. यहाँ पे जो आया था ये तुम्हारा रेडियल acceleration था. v square by r equal to this. यहाँ पे जो आया है ये तुम्हारा tangential acceleration. खुश minus 5g by 7 minus 5g by 7 into cos theta. Minus 5g by 7 into cos theta. Done. चलो अगर ये हो गया है तो इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में क्या कहा गया है भाई? नेक्स्ट पोर्शन में कहा गया है कि क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल. Frictional force acting on the ball if h equal to 60 centimeter, r equals to 10 centimeter, theta 0. अच्छा मतलब बॉल जब यहाँ पे उस टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन और थीटा m equal to 70 ग्राम. अच्छा जब थीटा इक्वल टू 0 होगा मतलब बॉल तेरे यहाँ पे होगा तब mg नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, mv स्क्वायर बाय r इस तरफ होगा. नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ होना चाहिए? ग्राउंड से बॉल के ऊपर. नॉर्मल रिएक्शन खुद mv स्क्वायर बाय r है ना. द नॉर्मल रिएक्शन itself is mg स्क्वायर बाय mv स्क्वायर बाय. गुड गुड, अच्छी बात. तो दैट्स माय नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. अगर नॉर्मल फोर्स मिल गया है तो यू कैन फाइंड इट आउट बाय दैट वे. नहीं तो अच्छा फ्रिक्शन उसे गिरने नहीं दे रहा है ना. ये फ्रिक्शन ही है जमीन का जो इस तरफ ये बॉल इस तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स, the tendency of motion is coming in this direction, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा. तो mg minus ma should be a frictional force. और mg minus f equals to m into a. ठीक है चलो. When theta equal to 0, normal reaction is your centripetal force, that is mv square by r. So we know v square by r, just multiply m with that. We know v square by r is this, just 10 mg 10 by 7 g into m, 10 mg by 7 10 mg by 7 10 mg by 7 h by r minus 1 minus sin theta. h by r minus 1 minus sin theta. अच्छा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है ना तो ये 0 पुट कर देना. h और r का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना. h बोला गया 60, r बोला गया 10, तो h by r is 6, तो यहाँ पे हो गया 6 minus 1 मतलब 5 10 by 7. m कितना है तेरा? अच्छा g तेरा 10 है, m कितना है भाई? m है तेरा 70 ग्राम कहा गया है, तो 70 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 1000. तो यहाँ से 2 0 से यहाँ के 2 0 काट दिए, 5 से इसको काटा 2, 2 से इसको काटा 5, 7 से 7 कट गया. So I think I'm getting 5 Newton. So I'm getting 5 Newton. 10 by 7 into 60 by 1000, the mass
सॉरी 70/1000 into G is your 10, 60 divided by 10 minus 1 minus sin 0 डिग्री। तो यहां से 5 आ रहा है, 2 10 से यहाँ पे 2 कट गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, 7 7 कट गया, 5 आ रहा है, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन आ रहा है तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन। 5 न्यूटन इज अ नॉर्मल रिएक्शन। और अगर नॉर्मल रिएक्शन आ गया, यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल कोफिशिएंट नहीं कहा गया है, जब इस पॉइंट पे रहेगा तब नीचे की तरफ mg काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स हैज टू एक्ट अलोंग योर this direction, तो mg minus f will be the acceleration, radial acceleration, the tangential acceleration. mg minus f, the frictional force is equals to your mass into acceleration. जहां से frictional force है mg minus am into a. This a is actually a tangential, okay? तो यहाँ पे m कॉमन ले लो, g माइनस ये क्या है, a is your minus 5g by 7 into cos theta. a is your negative of 5g by 7 into cos theta. मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, मतलब जिस तरह वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। तो यहां से क्या आ रहा है, therefore v decreases with time. Decreases as t increases. That means velocity or acceleration opposite direction, tangential acceleration. So at acts downward. at acts downward direction. at नीचे की तरफ काम कर रही है, ये बताया गया है। ठीक है भाई, ठीक है, at तुम्हारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, मैं समझ गया। at अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन तो mg ज्यादा होगा ना, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है तुम्हारा दोस्तों g माइनस 5g by 7 into cos theta. थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो mg को कॉमन ले लो, 1 minus 5 by 7 cos 0. तो 2mg by 7, 2mg by 7 क्या होता है, 270 by 1000 into 10 by 7. 2 0 से यहाँ पे 2 0 कट गए, 7 से इसको काट दिया, 2 से 10 को काटा, 5 आ रहा है, 1 by 5 कितना होगा, 0.2, that is 0.2. Frictional force acting in the vertically upward direction. The frictional force is acting in the vertically upward direction. चलो हो गया, आई थिंक सबको समझ में आ गया है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, और ये जो पूरा लेक्चर है रोटेशनल डायनामिक्स का आज मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा एज अ पीडीएफ, आप लोग वहां से कलेक्ट कर लेना। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। अच्छे से पढ़ाई करो, लाइफ में बहुत अच्छे करो, और पढ़ाई करते रहो, हर दिन हो, दिवाली आए, कुछ भी खुशी के दिन हो, दुख के दिन हो, पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम कभी भी आ सकती है। तो दिवाली है, मजे करो, अच्छी बात है, बट पढ़ाई भी साथ साथ करते रहो, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।